Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, Walaikum ma'am. salam, ma'am. Yes, you are Walaikum audible. salam. Okay. We are just waiting for all the students and our speaker as well. Then we'll start this meeting, inshallah. And how about you all? How is the internship going? Ma'am, it's going good. Okay. Are you learning something? बहुत अच्छी जा रही है इंटर्नशिप. Okay, good. Yes, ma'am. जो ट्रेडिशनल इंटर्नशिप्स होती है ना, उससे हट के सीखने को मिल रहा है. Okay. From where you are? I am from Lahore. Okay. Finally, a student from the Punjab University College of Pharmacy. Okay. अच्छा, I request you all, whenever you all, everyone, जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं या जब आपने हैंड रेज किया होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन कराया करें कि आपका नाम क्या है, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और कौन से शहर से हैं. ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है. Yes, ma'am. अच्छा, are you all making your notes? Yes, ma'am. We are making our notes. Okay, because at the end of these sessions, you will have your test. Okay, I think Dr. Nihal has also joined us. Assalamu alaikum, Dr. Nihal. Walaikum assalam. Hopefully, I'm audible enough. Yes, you are audible. And am I audible to you? Yes, you are. You are audible. Definitely. Okay. So I think we should start our session. And a very warm welcome to everyone on behalf of Nurturing Community Pharmacy in Pakistan and the Summer Internship Program 2025, Batch 19. I'm delighted to welcome you all to today's highly anticipated webinar that is titled Safe Use and Counseling of Over-the-Counter Medications. We are deeply honored to have with us a distinguished speaker, Dr. Nihal Nadir, a name that truly needs no introduction in the field of pharmacy practice. Dr. Nihal is a PharmD with an MPhil in clinical pharmacy practice and is American board certified in infectious disease and antibiotic stewardship. He serves as a core member of antimicrobial stewardship committee at Dr. Ruth K.M. Pao Civil Hospital, Karachi, and is currently working as a consultant pharmacist in anticoagulant services at Tabba Heart Institute. And his vast clinical experience and strong commitment to responsible medication use make him the perfect guide to walk us through the essential aspect of OTC medication counseling. So we are very excited to learn from your insights today, Dr. Nihal, and looking forward to an enriching and interactive session. Let's all stay engaged and make the most of this opportunity. Thank you, and once again, welcome. Thank you so much, Dr. Yashfa, for your kind introduction. And I really appreciate your efforts towards the pharmacy committee in educating the children and the students and the future of pharmacy in Pakistan. So I hats off to Yashfa and the entire team of Nurturing Committee Pharmacy. I'm Thank always you. grateful for them. So thank you so much once again. So let's begin with the with our topic.
And I just want to know again that we have students from all over the Pakistan, right? Yes. Okay, that's wonderful. So we will be discussing the safe use and counseling of the over the OTC medications. So before starting and going deep down into the topic, so it's my introduction as Yashwa or Dr. Yashwa already told you all. So we will be discussing the classification of the OTC medication and the inventory management, role of pharmacist in medicine dispensing, and rational use of OTC amongst patients, and proper selection of over-the-counter drugs, and patient counseling regarding the OTC. That will be our main concern for today. So let's begin. So before starting, I have a question from all of you. Okay, what is OTC? Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Myself personally, I am final year student from Punjab University College of Pharmacy. Sir, Okay. OTC drug means over-the-counter drugs which can be dispensed by pharmacists without prescription. Okay, okay, that's great. So, Hassan, thank you so much for your efforts. I think more or less हमने बहुत अच्छा बताया and Varisha, Manu and Javeria. जो भी मुझे आंसर करे वो ऐसे इंट्रोड्यूस करे and tell me आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है? Thank you so much, Hassan. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. I am Kiran Ladik from Shah Abdul Latif University, Khairpur. Okay. OTC means over the counter drugs that are purchased without prescription. All right, all right, all right, good. So किरण and हसन आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया, तो आप लोगों की क्लैपिंग हो जाए थोड़ी सी. So good. अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ओवर द काउंटर जो है वो बैठे बैठे ये टर्मिनोलॉजी नहीं आ गई है. सो इट्स अ होल जर्नी, इट्स अ होल एक पूरा एक प्रोसेस था जिसके जरिए ये ओवर द काउंटर का जो वर्ड है वो सामने आया. सही. सो इफ ही गोज बैक इन 1950s, so there was a person who was the champion of pharmaceutical reform. It was sort of a हम कह सकते हैं कि एक तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि फार्मेसी के हवाले से काम करती थी. सो उसमें क्या हुआ कि उसमें कार्ल धर्म साहब थे, वो उनके चैंपियन थे. सही. So he was the champion of that, or you can say the vocal person for that reform. So he actually legalized the term over the counter. So as I told you कि ऐसे नहीं आया word, so there is this whole journey. So मैंने बहुत आपको summarize करके बताई है. तो 1951 में there was a bill which was passed, जो कि कार्ल धर्म के नाम पर ही जो है वो जो है बनाया गया था. So that we call the Humphrey Amendment of 1951. So in this, through this bill and in this we got this term which is called the over-the-counter. So the term over-the-counter was legalized and अब मुझे बताएं कि what are the prescription drugs? Assalamualaikum, sir. Walaikum assalam. Myself personally, again, sir, prescription drugs are controlled substances like that that have highly impact on human health. Definitely. Okay. Exactly. You are absolutely right. Actually, in that era, in that time, people were misusing the drugs, or they were taking it like for the recreational purposes. वो अपने जो है habit forming और potential harmful उसके factor, जैसे हमने हसन ने बताया. हसन, good job again. So prescription drugs are those drugs which causes the जो आपको एक हैबिट फॉर्मिंग, जो आपको जो है किस तरह का रिक्रिएशनल एक्टिविटी में यूज की जाती है, या आपको जो है इन अ सिंपल वे नशा के लिए जो यूज करी जाती है, ठीक है, के लिए भी हो सकता है पॉसिबल हो. और दूसरा ये है कि वो आपको नुकसान पहुंचाए. सो इस वजह से जो है हमने क्या किया कि इन ड्रग्स को और ओवर द काउंटर ड्रग्स को अलहदा क्लासिफाई कर लिया. ठीक है. सो समझ आया सबको कि ये वर्ड कहाँ से आया और किस तरह से हमने जो है इसको जो है वो क्या बिल पास हुआ था. ठीक है. तो आगे चलते हैं. So what is FDA? So can anyone of you define what is FDA? What do you mean by Authority. Drug Authority. Food and Drug Authority? And where this organization is located? Actually, US. Okay. USA, definitely. Good job, everyone. So FDA says OTC or the over-the-counter drugs do not require a doctor's prescription, as told by Kiran and as told by Hassan Ali and the many others, and bought off the shelf in stores. Say it.
and regulated by the FDA through OTC drug monograph. We will be discussing this monograph in the next slide. Okay. So OTC drugs are drug monographs are kind of recipe book. एक तरह की रेसिपी बुक होती है, या आप कहें कि उसमें चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं कि इसमें ये चीज इसमें ऐड करनी है, या इसकी ये फॉर्मुलेशन, इसकी इस तरह की लेबलिंग होनी चाहिए. सो मोनोग्राफ में ये सब चीजें मेंशन है. अक्सर जो इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं उनके पास ये मोनोग्राफ होता है कि उसको देखते हुए जो है वो चीजें अपनी डिजाइन कर रहे होते हैं और बना रहे होते हैं. ठीक है, सही है. तो उस मोनोग्राफ को हम देख लेते हैं कि हाउ दैट मोनोग्राफ लुक लाइक, और उसमें क्या क्या इसकी लेबलिंग होती है. So you can see it's one of the label and the monograph that I told earlier. तो इसमें कुछ लिखा होता है कि इसमें ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है. व्हाट इज क्लोरफेनेरामीन, कोई मुझे बताएगा? जो लिखा है वैसे इसमें आगे, इसका पर्पस क्या है? हेलो, am I audible? Yes, Dr. Nihal, you are audible. Okay, सही. So किरण, if you want to say something, आप बताएंगे कि ये हमारे पास ड्रग कौन सी है क्लोरफेनेरामीन? Sir, I think anti-allergic histamine है. हाँ, गुड, वेरी गुड. सो इट्स एंटी एलर्जी ड्रग. ठीक है. जो तो इसमें हर चीज आपकी ना आपके इस लेवल पे, इस मोनोग्राफ पे जो है ना, हर चीज आपकी सही से लिखी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो है जनरल पब्लिक भी पढ़ सकती है और आपके जो है ना हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर भी पढ़ सकते हैं, जैसे हमारा. तो इसमें हर चीज जो है प्रॉपर्ली लिखी होनी चाहिए और फॉर दी ओवर द काउंटर ड्रग. ठीक है. इसका यूज जैसे बताया कि एंटी एलर्जी है, अब स्नीजिंग यूज होती है, रनिंग नोज इस्तेमाल होती है, आपकी इची और वाटरी आइज इस्तेमाल होती है, और इची ट्रॉट में आपके जो गला अगर खराब हो जाए, तो ये बेसिकली इसमें हर चीज क्लियर लिखी होनी चाहिए. नंबर 1, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है प्रॉपर लिखा होना चाहिए, अलॉन्ग विद द डोज, अलॉन्ग विद द क्लास का पर्पस. ठीक है. उसका यूज और वार्निंग. ठीक है. मुझे कोई बताएगा कि मुझे कोई ये बताएगा कि एंटी हिस्टामिन के लिए हम लोग जब पेशेंट को काउंसिल करेंगे तो हम क्या चीज एडवाइस करेंगे जब भी हम कोई एंटी हिस्टामिन देंगे? एनीवन? आई गेस कि ये थोड़ी सेडेशन कॉज करती है, तो तो हम क्या करेंगे? क्या आप जो है ये खा के गाड़ी चलाएं नहीं चला या मोटरवे पे निकल जाए, या कोई वर्किंग काम ना करे? हाँ, डेफिनेटली. आपको हैवी मशीनरी. गुड्स ऑफ लाइबा एंड गुड्स ऑफ हसन वंस अगेन, एंड राबिया एंड एनत एज वेल. आपने बहुत अच्छा आंसर दिया एंटीहिस्टामिन्स का, सो गुड गोइंग. सो लाइबा एग्जैक्टली हम लोग ऐसे ही करेंगे. हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि हमें जो है बिल्कुल भी जो है हरगिज जो है वो जो है पेशेंट को ये काउंसिल करना है कि आपको गाड़ी या कोई ऐसी हैवी मशीनरी यूज नहीं करनी है. ठीक है. तो इसलिए इस ड्रग फैक्ट के ऊपर, इसके लेवल के ऊपर चीजें बहुत प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए. ठीक है. सो तो आप भी बताओगे कि आप जो है आपको ड्राउजी फील करोगे, आप अवॉइड, आप अपने अल्कोहलिक ड्रिंक साथ में अवॉइड, बिकॉज आप ऑलरेडी ड्राउजी करने वाली मेडिकेशन आप यूज कर रहे हो, तो दैट कैन बी प्रॉब्लमैटिक. ठीक है. सो ये हमने डिस्कस कर लिया. तो और बाकी ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से जो है आपको मालूमात देनी है कि अगर इसमें वैसे अक्सर अब तो लीफलेट्स पे लिखा हुआ होता है, इसको हम लोग लीफलेट भी कहते हैं, जो कि या ड्रग लिटरेचर भी कह सकते हैं. ठीक है, सही. सो जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग जो उनके हवाले से हमें जो है डिटेल चीजें बतानी चाहिए, दवा सुटेबल है कि नहीं है. ठीक है, सही. और बच्चों की पहुंच से दूर रखें. आप लोग हर ये इश्तेहार सुनते होंगे जब भी कोई ऐड आता है टीवी पे दवाओं का, तो कीप आउट द रीच ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है. और फिर उसकी डायरेक्शन भी कैसे होती है लिखी हुई, एज वाइज. ठीक है. एडल्ट और जो 12 साल के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग ये हैं. अच्छा, मुझे बताएं कि हम लोग ये जो एक ऐसे एज ग्रुप होती है जो ना बच्चों में होते हैं और ना ही जो वो लोग हैं वो बड़ों में होते हैं, तो वो कौन सा एज ग्रुप होता है? मतलब वो एडल्ट भी नहीं है और वो बच्चे भी नहीं है. एनी आइडिया? टीनेज अडोलेसेंट कहते हैं. एग्जैक्टली. ठीक है. तो अडोलेसेंट जो है कि वो ऐसा एज ग्रुप होता है कि जो कि ना बड़ों में आता है और ना ही जो है बच्चों में आता है. ठीक है, सही. किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल कोई पूछना चाहे, बताइए. एनी क्वेश्चन? अभी तक जो हमने पढ़ा किसी को कुछ नहीं पूछना? सो अडोलेसेंट में भी
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि why people are not interactive today. चले कोई Why बात it's नहीं। sleep? हाँ, सो एनीवेज आगे चलते हैं, चलें कोई बात नहीं। तो अडोलेसेंट में भी दो तरह की एक आते हैं, अर्ली अडोलेसेंट आते हैं और एक जो है लेट अडोलेसेंट आते हैं। अर्ली अडोलेसेंट एग्जैक्टली जो आपके 15 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको, और जो लेट अडोलेसेंट होते हैं वो 15 ऑनवर्ड्स, 15 to 19 या 15 to 18 जो है वो आपके अडोलेसेंट आती है, ठीक है। तो ये एज ग्रुप होती है। सो बीइंग अ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर यू शुड नो एज ग्रुप के, इन्फेंट्स की एज ग्रुप क्या होती है, न्यूनेट्स की एज ग्रुप क्या होती है, ठीक है, या आपका जीरियाट्रिक पॉपुलेशन कौन सी होती है। तो यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है। फिर हम जो है बस इस लेवल पे, बेसिकली इस लेवल का मकसद ये है कि इसमें हर चीज, ओवर द काउंटर का जो लेवल है उसमें हर चीज प्रॉपरली क्लियरली लिखी हो, तो ये दवा जो है आपकी आम पब्लिक पर जाएगी, ठीक है। तो जी अच्छा, अब मेरा आप लोग से सवाल ये है कि हमारे पास फार्मेसी जो होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? Sir, 25 degree room temperature, I think so. हाँ, आई थिंक सो, या बिल्कुल कंफर्म? आपने Sir, सही बताया। confirm. हाँ, हाँ, 25 25 डिग्री सेंटीग्रेड, गुड गुड, ऐसा ही है बिल्कुल। लो 25 तक आपको टेम्परेचर होना चाहिए। और आपकी ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? सर इसका आइडिया नहीं है। इसका आइडिया नहीं है, कोई कोई इसमें बताना चाहेगा? मुबशिर आप आंसर कर रहे हैं, महानूर गुड जॉब। महानूर 27 नहीं 25 है, ठीक है। सो तो कोई इसमें बताएगा ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? एनीवन, यू कैन यूज गूगल, आई डोंट माइंड, लेकिन इसमें आंसर तो दें आप लोग। यूज एआई एंड टेल मी द आंसर। कितनी होनी चाहिए ह्यूमिडिटी फार्मेसी की? कितना एक लिमिट होती है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, 50%, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 60। एग्जैक्टली करेक्ट। बिलो 60 जो है आपका ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो Below हम लोग ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं फार्मेसी में? अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो व्हाट टू डू? ह्यूमिडिफायर लगा के। एग्जैक्टली बिस्मा। बिस्मा आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। आई जस्ट वांट टू नो कि आप कहाँ से जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से, जो भी मुझे आंसर कर प्लीज मुझे बताया कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से और कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं। Assalamu alaikum. My good name is Sushma Darik and I'm basically from Lumps University, Jamshoro. अच्छा, दैट्स ग्रेट बिस्मा, गुड जॉब। सो बिस्मा, आई रियली अप्रिशिएट योर आंसर कि आपने बताया हम ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं। फोर से यू नो वी आर लिविंग इन द कंट्री, स्पेशली मेरा भी ताल्लुक जो है सिंध से है, तो हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ह्यूमिडिफायर नहीं होगा। सो देन व्हाट वी विल डू? बिस्मा, आप इसमें कुछ अपना इंसाइट बताएंगे? हम्म, हम इस बात केस में इस तरह से मुझे खैर आइडिया नहीं है, बट ये है कि जैसे मेडिकेशंस में मैंने काफी बार सुना है, लाइक वी आर यूजिंग अ सिलिका जेल एज अ ह्यूमिडिफायर, आई गेस, इफ आई हाँ एम नॉट गेटिंग रॉन्ग। हाँ, यू कैन से एयर कंडीशन। अगर एयर कंडीशन भी ना हो यास्मीन, तो देन व्हाट वी विल डू? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जैक्टली Sir, हम एग्जॉस्ट, Daisy प्रॉपर can't. वेंटिलेशन सिस्टम। एग्जैक्टली बिस्मा। बिस्मा, अब सब लोग जो है जागना शुरू हो गए। यशफा, थैंक यू सो मच डॉक्टर यशफा, सबको जगाने के लिए। अटेंडेंस का सुनकर जो सारे बच्चे जो है वो आंसर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आई रियली अप्रिशिएट लाइबा एंड बिस्मा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, तो आप लोग के लिए जो है तालियां होनी चाहिए। तो अभी ये है कि हमने डिस्कस किया कि 60 से कम जो है वो फार्मेसी का ह्यूमिडिटी का एक रेंज है, ठीक है। उससे अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो अगर उससे ज्यादा होगा तो अगर हम लोग किसी ऐसी फार्मेसी में जो कि एक बहुत ही बेबान इलाके में या इतनी रिसोर्सेज नहीं है, आपको ह्यूमिडिफायर नहीं, इवन आपको सिलिका भी नहीं, तो आप क्या करोगे? सिंपली फार्मेसी में आके आप दरवाजे और खिड़की खोल दोगे ताकि थोड़ी सी एग्जॉस्ट का जो चैनल है वो बने और थोड़ी सी हवा है। तो मोरलेस आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, ठीक है, चलें, थैंक यू। तो अब जो है फिर लास्ट में आपने देखें इस लेबल के ऊपर वी हैव दिस इनएक्टिव इंग्रेडिएंट की भी जो है ना मेंशन करना चाहिए, क्योंकि किसी को पोर से सल्फर से एलर्जी है या किसी चीज से एलर्जी है, या कुछ ऐसे चीजें होती है जो कोई पेशेंट को वो खा नहीं सकते या उनको उससे एलर्जी हो जाती है, तो आपको अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट भी क्लियरली मेंशन करने चाहिए इस लेवल के ऊपर, ठीक है। सो अब मुझे बताएं कि ओवर द काउंटर ड्रग्स हमने बहुत डिस्कस कर लिया कि क्या होती हैं और ये कैसे आई, और इसका हमने मोनोग्राफ भी देख लिया, इसका लीफलेट भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इसके कॉमन क्या क्या यूज होते हैं ओवर द काउंटर के, स्टार्टिंग फ्रॉम बिस्मा?
क्या किस पर्पस में यूज कर सकते हैं ओवर द काउंटर की इंडिकेशन? एज अ पायरेक्सिया के तौर पे भी मोस्टली हम पैनाडॉल ले रहे होते हैं, तो ये भी एक ओवर द काउंटर यूज ठीक की जा रही है, होती है। तो लाइबा कैन यू टेल मी व्हाट इज पायरेक्सिया? Pyrexia, I get fever type. फीवर टाइप, ठीक है। एग्जैक्टली पायरेक्सिया इज द सेकंड नेम द फीवर। को पायरेक्सिया क्यों कह रहे हैं, कुछ कोई और उसमें बताएगा? कोई व्हाई वी कॉल फीवर पायरेक्सिया? कहाँ से वर्ड निकला है पायरेक्सिया का? सर पायरोजन से निकल रहा है, ड्यू टू हाँ एग्जैक्टली। पायरोजन। आई थिंक आज जो है हम लोग हसान को स्पेशल सर्टिफिकेट मिलना चाहिए बिकॉज ही डूइंग वेरी वेल। गुड जॉब हसान। So exactly, the word pyro exactly Javeria, very good. So pyrexia जो है word हमारे पास pyrogen से लिखा है, that is pyrogen, you know, fever causing bacteria or the infection causing bacteria, ठीक है। तो इस तरह से हमें लिखा, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। फीवर हो गया, इसके अलावा ओवर द काउंटर हम ड्रग्स पेन में देते हैं जवेरिया, वेरी गुड। इसके अलावा और किसी? कफ में, फ्लू में, पेन। अच्छा सही है। पहले एलर्जी में देते हैं, लाइबा ने बताया, किरण ने बताया कॉफ में भी देते हैं, ठीक है। तो जो भी हमें कॉफ कोल्ड सा इशू हो अगर कौन सा डाइजेशन इश्यू हो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। जीआई कोई ट्रबल हो, इसके अलावा सीजनल फ्लू हो जाए, सीजनल फ्लू हो जाए, ठीक है, सही है, ठीक है, वेरी गुड। और इसके अलावा कोई बताना चाहेगा कि ओवर द काउंटर यहाँ जो हमारी स्क्रीन पे लिखा है, इसके अलावा कुछ आपको है दिमाग में आ रहा है इन सारे वर्ड्स? इन मसल पेन, मस्कुलर पेन के लिए मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट, स्किन एलर्जी, ठीक है। और इसके अलावा हो उसके भी यूज करते हैं, एक नहीं हो अगर हाँ एक्ने भी हो, अगर एक्ने की स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी इसमें देखें ओवर द काउंटर में आ सकते हैं। तो मोर लेस आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, तो हेड्स ऑफ टू यू ऑल। तो अब हम चलते हैं। तो ये हमारी कॉमन है कि आप पेन में देंगे, आप कोल्ड कॉफ साइनस में भी देंगे, हार्ट बर्न में दे सकते हैं, ठीक है, स्टमक में दे सकते हैं, डायरिया में होगी, स्किन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन हो गया, मस्कुलर पेन हो गया, ओवर द काउंटर के बहुत सारे इस्तेमाल आते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है डिफ्रेंशिएट हमें करना है, हम बारी बारी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में क्या फर्क होगा। तो कोई बताएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में? ओवर द काउंटर के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आंसर किसने दिया मुझे? लाइबा। लाइबा, वेरी गुड जॉब, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग्स कौन सी होती हैं? सर जो लो डोज पे ना टॉक्सिक इफेक्ट काज करे, लाइक डिजॉक्सिन इज अ नैरो थेराप्यूटिक। वेरी गुड, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग है हमारे पास? वैंकोमाइसिन। हाँ वैंकोमाइसिन है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक भी मोर लेस कुछ, हाँ एग्जैक्ट वैंकोमाइसिन, सही, फेनेटाइन हो गया। और इसके अलावा वार्फरिन, एग्जैक्टली, क्लोपिडोग्रेल, क्लोपिडोग्रेल सॉर्ट ऑफ नहीं है, हमारे पास वार्फरिन हो गया, एंटीकोगुलेंट्स हो गया, ठीक है। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन तो माइनोफाइलिन हो चुका है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर जैसे डिजॉक्सिन बताया आपने, वार्फरिन बताया और या वैंकोमाइसिन बताया, हम लोग इसकी सेफ्टी के लिए हम लोग कौन सी प्रोसीजर करते हैं फिर? सर लेब वो पर डिपेंड करते हैं करता है। ना। ओवरऑल देखो हर ड्रग की अलग लैब टेस्टिंग होती है, तो उसको उस टेस्टिंग को हम कहेंगे क्या कलेक्टिवली? To start with lowest effective dose. नहीं, हाँ ये भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि इसकी सेफ, हाँ आपने अच्छा बताया। लीथल डोज का रेशो निकालते तो नहीं है इफेक्टिव थेरेप्यूटिक इंडेक्स चेक करने के लिए? नहीं अभी बिस्मा, हाँ ये भी कर सकते हैं, लेकिन अभी किसी ने शायद कहा कि लैब हम लोग टेस्टिंग करते, किसी ने ऐसा कहा था अभी मुझे, कौन था वो? यस आई एम ट्रांस, मैंने कहा हाँ था सर, अगर ना वार्फरिन हम देते हैं ना, उसकी लेवल मेजर करने के लिए हम लेब्स परफॉर्म करते हैं। आई थिंक उस लेब का नाम है INR समथिंग, ऐसे ही था। एग्जैक्टली INR मॉनिटरिंग करते, ठीक है, वार्फेयर हम, यस सर। एग्जैक्टली। तो इन सारे टेस्ट को कलेक्टिवली क्या कहेंगे? ये डॉक्टर यशवा ने वैसे हमें आंसर कर दिया है। तो अगर आप डॉक्टर यशवा का कमेंट पढ़ें, अगर आपको विजिबल हो रहा है, तो फिर मुझे बताएं कि डॉक्टर यशवा क्या कह रही हैं। TDM, therapeutic drug monitoring. एग्जैक्टली, तो वी विल बी डूइंग द थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑफ दिस। वंश लाल ने भी आई थिंक आंसर किया है, तो दैट्स ग्रेट। सो एग्जैक्टली हम लोग जो है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे इन सारी दवाओं की, ठीक है, जो कि नैरो थेरेप्यूटिक होती है। तो उसमें ये आपके INR मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक है।
आपकी वार्फरिन के हवाले से हम लोग देखते हैं कि खून कितना पतला हो रहा है, कितना गाढ़ा है, तो इट्स अनदर क्लास इसकी इस पे हो सकती है। दूसरा ये है कि फेनाइटोइन हो गया, डिज हो गई, डिजॉक्सिन हो गई, वैंकोमाइसिन, इसके लिए हम लोग इनके लेवल्स करवाते हैं, इनके ब्लड में लेवल चेक करते हैं। तो दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड TDM और द थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो अपना दिमाग को जो आप हाजिर रखा करें, क्योंकि अगर आपको आगे जाकर बहुत सारे इंटरव्यूज देने, तो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आप ऐसे ब्लैंक रहेंगे, तो फिर it will be a problematic. So thanks for the comments आप लोगों ने किए हैं, बुशरा ने और उमैमा ने एंड मुबशिर ने, महानूर ने, तो गुड जॉब नूरुल ऐन ने, सो हेड्स ऑफ टू यू ऑल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमने ये चीज डिस्कस कर ली। अब आगे ये है कि ओवर द काउंटर का जो मेन डिफरेंस ये आता है कि ये एक तो थेरेप्यूटिक ड्रग इसमें प्रिस्क्रिप्शन में आती है, और जो जिनकी थेरेप्यूटिक सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है वो हम लोग ओवर द काउंटर में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, एंड ओवर द काउंटर जैसे आप लोगों ने बताया कि इसके लिए आपको डॉक्टर का पर्चा नहीं चाहिए होता है या डॉक्टर का नुस्खा नहीं चाहिए होता, और फॉर द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है, जो है उसके लिए आपको डॉक्टर का नुस्खा चाहिए होता है। तो मुझे ये चीज बताएं, जैसे कि फोर से वी आर कॉलिंग दिस ड्रग ओवर द काउंटर, तो ऐसा कोई वर्ड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए भी अवेलेबल है? कंट्रोल ड्रग्स कह सकते हैं, अंडर द काउंटर कह सकते हैं। ठीक है, अंडर द सही। सो ओवर द काउंटर मेडिकेशन जो होती हैं, अगर उसकी एक्सेसिबिलिटी की बात करें, तो ये आपके जो है ऑफ द शेल्फ या फार्मेसीज में, सुपरमार्केट में आपको इजीली मिल जाती हैं। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिकेशन है वो परचेज थ्रू फार्मेसी और डिस्पेंस बाय लाइसेंस फार्मासिस्ट। ठीक है, इनकी डिस्पेंसिंग के लिए फॉर द नार्कोटिक्स वी नीड अ प्रॉपर फार्मासिस्ट टू लुक आउट दोज मेडिकेशन। ठीक है, सही है, ये आपको कोई टेक्नीशियन या कोई आपका जो है वो ले मैन जो है उसको नहीं कर सकता। लेकिन फॉर द पैराडोल एंड फॉर द ओवर द काउंटर ड्रग वी कैन यूटिलाइज द लेमैन और द अदर पर्सन्स। ठीक है, बट फॉर द एंटीबायोटिक्स एंड फॉर द स्पेशली नार्कोटिक्स वी नीड अ लाइसेंस फार्मासिस्ट। ठीक है, सही है। फिर लास्ट में लिखा हुआ है हमारे पास इन दोनों के डिफरेंस में कि ओवर द काउंटर कैन बी यूज्ड बाय एनीवन ऑन नीड बेसिस, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि अगर किसी को नज़ला जुकाम हो रहा है तो वो जाएगा मेडिकल स्टोर या फार्मेसी, वहां से वो एंटी एलर्जी परचेज कर लेगा। बट किसी को बहुत सीवियर फंगल इन्फेक्शन है या कोई सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है या चेस्ट खराब हो रहा है और फीवर नहीं सबसाइड हो रहा, तो उसके लिए आपको वो स्पेसिफिक पर्पस हो गया, तो उसके लिए वी नीड टू विजिट अ डॉक्टर टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन। सही है, ताकि आप वो खरीद सकें दवाएं फार्मेसी से। ठीक है, सही। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मुझे बताएं कि किसी भी ड्रग का रीजन क्या हो सकता है कि वो जो है ओवर द काउंटर ड्रग बने। रीजन ऑफ एग्जैक्टली, तो लेस टॉक्सिक हो सकती है, सेफ हो सकती है, गुड जॉब बोथ ऑफ यू। और इसके अलावा सर उसका सेफ्टी प्रोफाइल जो है वो देखा जाता है कि एग्जैक्टली साइड इफेक्ट्स कम हो सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसके साइड इफेक्ट्स कम हो और इसके थेरेप्यूटिक जो है सेफ्टी प्रोफाइल, और इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव भी देखी जाती है सर। हाँ, कि सस्ती है, महंगी है। ठीक है, और क्विक रिलीफ आपको वो देगी। सही है, ठीक है। और वो बिल्कुल भी अच्छा, ये जो पिक्चर बनी इससे आपको क्या जाहिर हो रहा है? पॉइंटर सर साइड मूव नहीं हुई है शायद। नहीं हुई। एक मिनट रुकिएगा, हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अभी हुई है? यस सर, हो रही है जी। ठीक है, सही है। सो रीजन ऑफ अ ड्रग टू बिकम ओवर द काउंटर, आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता दी हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, इसका इस्तेमाल सेफ होता है। अब ये जो पिक्चर है ये मुझे कोई बताया कि बहुत ये नजर आ रहा है पिक्चर ब्लैक, तो ये मीन के आप इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते और ये ओपिएट की तरह जो है ना वो नॉट एडिक्टिव। ठीक है, एग्जैक्टली। हमने इस लॉ में ये बात की थी कि इट्स नॉट हैबिट फॉर्मिंग और ये हार्मफुल नहीं है, तो ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, ये आपकी एडिक्शन कॉज नहीं करती है। ठीक है, और लास्ट में क्या है ये कि ये आपकी नेशन वाइड अवेलेबल हो, इजिली एक्सेसिबल हो, आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, आप किसी भी स्टोर जाओ वहाँ ही अवेलेबल हो। ठीक है, तो नेशन वाइड अवेलेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो हम दोबारा से इसको देखते हैं कि इसका रीजन क्या होता है किसी ड्रग का। नंबर 1 कि वो हैबिट फॉर्मिंग ना हो। ठीक है, आगे बताएं आप लोग। quick release and easily कॉस्ट accessible हो, इफेक्टिव। it's ठीक है, available और and इसके साइड इफेक्ट्स कम से कम साइड इफेक्ट एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक एक अब इसके बाद एक रिसर्च हम देखते हैं। ठीक है, तो इस रिसर्च में हमने ये देखने ये रिसर्च हमें ये बताना चाह रही है
कि लोग क्या समझते हैं कि हमें ये ओवर द काउंटर क्यों यूज करनी चाहिए। तो जैसे कि आप सोचे, आप हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है, आपको क्यों लगता है कि हमें ओवर द काउंटर ड्रग यूज करनी चाहिए? सर पहले तो इसमें ये था कि आप फिजिशियन के पास जाते हैं और फिजिशियन की कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाती है, और हाँ उसके बाद टाइम भी आपको काफ़ी लग जाता है। तो रादर देन ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हम फार्मेसी पे जाएं और वहाँ पे जाना ओवर द काउंटर ड्रग ले लें, ताकि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, इसके अलावा कि प्रॉब्लम अभी इतना बड़ा नहीं है। ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं, इतनी अलार्मिंग या सीरियस कंडीशन नहीं है। तो जैसे आई थिंक सबसे ज्यादा लोग जो है ना 35% यही समझते हैं कि आपकी ये स्टडी ये बता रही है, कि मैं नहीं बता रहा हूँ, कि 35% ये कहते हैं कि ये इतनी अलार्मिंग कंडीशन नहीं है और इतना सीरियस इशू नहीं है, उसको हम लोग अभी फार्मेसी जाएंगे, वो दवा देगा थोड़ी सी, वो खा लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। या आपको ना आइडिया है, जैसे हमें पता है कि खांसी हो रही है, ठीक है, तो कॉफ के लिए हमें जो है ये दवा हमने पहले यूज की थी, हम दोबारा यूज कर लेते हैं। अब तो खैर हमारा तो हेल्थ केयर सिस्टम इतना ज्यादा वर्स्ट है, स्पेशली हमारी जो आवाम है, वो इवन वो एंटीबायोटिक्स के हवाले से भी यही सोचती है कि हमने ये फलाना एंटीबायोटिक खाई थी उस मरीज ने, तो अब जो है हम दोबारा वही खा लेते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। तो मोरलेस वो ओवर द काउंटर ही समझ रहे थे, हालांकि ऐसा नहीं। हमें हमें ये करना है, हमें आगे लोगों को एजुकेट करना है, क्योंकि जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो जो है अब रेजिस्टेंस इसलिए इसी वजह से आ रही है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग कॉफ की बात करें तो मुझे बताएं कि कॉफ कितने तरह की होती है? Multiple times there's a productive cough and whooping cough and वेरी गुड। ड्राई कफ। ड्राई कॉफ, dry or yes. नहीं बिस्मा, वेरी गुड एफर्ट्स। और ड्राई कॉफ किसने कहा था? मैंने सर मैंने। लुबाबा, कहाँ से हैं आप? कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप बेटा? ऑफ कराची। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, वेरी गुड। ठीक है, तो इधर भी मैं देख रहा हूँ कि काफी लोगों ने आंसर दिया है। मारिया, वेरी गुड जॉब। राबिया, आपने कहा इतनी एक्सेसिबल होती है। और यास्मीन कह रही है कि लोगों को दवाई आसानी से मिल जाती है फार्मेसी, बिल्कुल ठीक है। एंड बिल्कुल हमारे पास ना मेन तरह की जो है ना 2 कॉफ होती है। एक नॉक्टर्नल कफ भी किसी ने कहा है कि रात में जो है वो कॉफ आती है, ज्यादातर एस्मेटिक या सीओपीडी पेशेंट में आती है। तो मेजर जो है हमारे पास जो है वो 2 तरह की होती है, ड्राई कॉफ होती है और प्रोडक्टिव कॉफ होती है। मुबशिर हमें कह रहे हैं कि समहाउ दे हैव नॉलेज अबाउट मेडिकेशन लाइक डिस्पेंसर लोग एक्सेट्रा, एग्जैक्टली। आप कभी है, और क्रॉनिक जीरियाट्रिक कॉफ भी होती है। तो लेकिन मेजर जो है ना, जैसे अब्दुल बारी ने बताया कि हमारे पास ड्राई कॉफ होती है और प्रोडक्टिव कॉफ होती है, जैसे बाबा और अब इसमें भी यही कहना चाह रहे थे। तो अब मुझे बताएं कि प्रोडक्टिव कॉफ और आपका जो है ड्राई कॉफ में क्या फर्क होता है? प्रोडक्टिव कफ ये जो मतलब स्प्यूटम प्रोडक्शन भी इसके अंदर होती है प्रोडक्टिव कफ के अंदर, और whereas in ड्राई dry कॉफ? कफ में इसमें स्प्यूटम प्रोडक्शन इतनी नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली। और कोई इसमें कुछ कहना चाहेगा इसमें ड्राई कॉफ और प्रोडक्टिव कॉफ में? ओके, आई थिंक सबने वैसे सही बताया कि हमारे पास ड्राई कॉफ में जो होता है स्पूटम या म्यूकस प्रोडक्शन नहीं हो रही है, और जो प्रोडक्टिव कॉफ में आपकी म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि किसी को कॉफ सिरप्स याद है कि ड्राई कॉफ में और प्रोडक्टिव कॉफ में कौन से सिरप्स कौन कौन से होते हैं? Dexamethasone, which is used in dry cough. I may be confused. नहीं, वो तो स्टेरॉइड है। आप तकरीबन सही बताएं। हाइड्रोलिन। हाइड्रोलिन। हाइड्रोलिन का जेनेरिक क्या है? हाइड्रालाजिन। हाइड्रोलाजिन। मैंने वंशलाल, पेशेंट के प्रेशर्स कहाँ जाएंगे? ब्लड प्रेशर गिरा दोगे आप मरीज के? वो तो आपकी जो है एंटी हाइपरटेंसिव है हाइड्रोलाजिन। बट गुड गुड एफर्ट वंश, आपने गलत बताया, बट आई स्टिल अप्रिशिएट कि आपने आंसर किया। नहीं, दैट्स ओके। तो मुझे बताएगा कि गूगल करके कोई बता दे कि हाइड्रोलिन का जेनेरिक क्या है। तो काफी वैसे बहुत सारे कफ्स आते हैं, काफी लोग नाम भी बता रहे हैं, आईवी लीफ के भी आते हैं। मैलिएट। फिनेरामिन मैलिएट नहीं है जेनेरिक हाइड्रोलिन का। सो डाइफेनहाइड्रामिन। डाइफेनहाइड्रामिन होता है, ठीक है। नहीं डाइफेनहाइड्रामिन, सर इमानोफाइलिन। अमाइनोफाइलिन नहीं है, डाइफेनहाइड्रामिन है। तो हाइड्रोलिन में वी हैव डाइफेनहाइड्रामिन, और डाइफेनहाइड्रामिन की क्लास क्या है? हाँ जी, डाइफेनहाइड्रामिन की क्लास क्या है? हाइड्रोलिन में एंटीहिस्टामिन है। फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन? सर ये नहीं आइडिया। किसी का आइडिया कि डाइफेनहाइड्रामिन की जनरेशन कौन सी है?
फर्स्ट First जनरेशन generation. वेरी गुड सो वी हैव बुशरा वेरी गुड जॉब आपने बहुत अच्छा आंसर किया सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ जो है जनरेशन आती हैं सिस्टम में फर्स्ट होती है सेकंड होती है तो कोई मुझे बताएगा कि दोनों में दोनों जनरेशन का फर्क क्या है फर्स्ट की क्या खास बात है और सेकंड की क्या खास बात है फर्स्ट जनरेशन ऑलमोस्ट सेडेटिव होती है और सेकंड सेडेटिव होती है वंश वेरी गुड हेड्स ऑफ टू यू माशाल्लाह से आपने बहुत जबरदस्त आंसर दिया तो एग्जैक्टली हमारे पास जो इसमें भी दो तरह की आती हैं जो फर्स्ट वाली होती हैं वो आपको ड्राउजीनेस करवाती हैं और जो सेकंड वाली होती है वो ड्राउजीनेस या तो नहीं करवाती हैं या ना होने के बराबर करवाती हैं ठीक है सो एग्जैक्टली सो अब हम आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर तो हाइड्रोजन भी दो तरह के आते हैं एक डीएम आता है और हाइड्रोजन प्लेन आता है तो दोनों का फर्क किसी को मालूम है anyone what is hydrogen and hydrogen DM you can google सर डीएम डबल स्ट्रेंथ होती है नहीं डबल स्ट्रैंड नहीं होती बिस्मा आप कुछ कहना चाह रही थी शुरू में आपने खैर वो डीएम फॉर प्रोडक्टिव एनत कह रही हैं शुगर फ्री और शुगर नहीं ऐसा भी नहीं है आप सब लोग बिल्कुल ही सही आंसर नहीं दे रहे जी हसन आप कुछ कहना चाहेंगे एडिशनल इंग्रेडिएंट मेरा ख्याल है इसमें होता है उसकी बेस पे इसको डीएम कहा जाता है डीएम विद स्टेरॉल सारे होते हैं कफ को सर यश डॉक्टर यश आप कुछ मेट्रोफन हाँ एग्जैक्टली डॉक्टर यश आप कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई आई नहीं मुझे Are you on slide number 10? हाँ मैं 10 पे नहीं हूँ अभी भी मैं ठीक Okay, है okay, alright. ठीक है सो एग्जैक्टली इसमें हमारे पास जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है ये हमारे पास ड्राई कॉफ में होता है तो अक्सर सिरप्स का अगर डीएम लिखा हुआ होता है डीएम इज नॉट फॉर डायबिटीज सही है इट्स नॉट फॉर द शुगर फ्री और नॉट अ डबल इट्स द डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एंड इट्स यूज्ड फॉर ड्राई कॉफ ठीक है तो जहां भी आप डीएम यूज कर अगर इसको देखें अगर इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है कि नहीं है तो दैट इज इंडिकेटेड फॉर द ड्राई कॉफ ठीक है सो अब हमने ये डिस्कस कर लिया हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं ठीक है तो अब मुझे बताएं कि इसके जो है और मजीद क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं हमारे पास ये ओवर द काउंटर्स के क्या उसके हम जो है क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम ये ले रहे हैं ओवर द काउंटर तो फायदे हमने डिस्कस कर लिए कि सेफ होती है नेशन वाइड अवेलेबल है लेकिन नुकसान क्या हैं क्या इसके कौन से हैं ड्रग यूज ज्यादा करना ड्रग अब्यूज करना मींस के अक्सर ऐसे होता है कि सिम्टम्स क्योर हो रहे होते हैं एक्चुअल जो उसका कॉज होता है ना वो नहीं अंडरलाइन कॉज नहीं वो ट्रीट हो रहा होता तो हम बार बार जो है वो सिम्टम्स ही जो है ना वो ट्रीट कर रहे होते हैं इस वजह से वो ड्रग अब्यूज नहीं करते एग्जैक्टली बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया है फॉल्स डायग्नोसिस हो सकता है ठीक है इसके अलावा सर जैसे एसिटामिनोफेन है पेनाडोल है लोगों ने एक्सेस में ले रही है उनकी ना लिवर सिरोसिस हो सकती है एडवर्स इफेक्ट एग्जैक्टली लिवर सिरोसिस हो सकती है ठीक है या लोग कहते हैं कि कैल्पो और पैरानोल साथ ले लेते हैं उनको नहीं पता होता कि दोनों का जेनेरिक सेम है ठीक है ड्रग इंटरेक्शन भी इस हवाले से हो सकते हैं कि वो नहीं काउंसल किया जाता कि इसको खाने के पहले लेनी है या बाद में लेनी है उस तरह भी आइडिया नहीं होता लोगों को एग्जैक्टली फूड इंटरेक्शंस भी हो सकते हैं फूड इंटरेक्शन हो सकते हैं ठीक है कोई मुझे कॉमन फूड और ड्रग इंटरेक्शन बता सकता है सर ड्रग के साथ हाँ एग्जैक्टली फूड और ड्रग इंटरेक्शन टेट्रासाइक्लिन है वो हमें मिल्क के साथ नहीं लेनी चाहिए मिल्क के साथ लेते हाँ अगर हाँ एग्जैक्टली वेरी गुड लेकिन टेट्रासाइक्लिन ओवर द काउंटर नहीं अगर ओवर द काउंटर की बात करें कोई इंटरेक्शन आपके याद दिमाग में आ रहा है जैसे हम पैराडोल कॉफी वगैरह के साथ ले लें तो उसका भी सही है ये भी ठीक है लेकिन ये है कि अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बताएं कि आयरन हमें किस टाइम लेना चाहिए अगर कोई आयरन का मल्टीविटामिन या आयरन की कैप्सूल है तो वो किस टाइम लेनी चाहिए नाश्ते के में साथ लेनी चाहिए या दोपहर में लेनी चाहिए रात में लेनी चाहिए अगर मैं आयरन की बात करूं खाली पेट लेनी चाहिए तो क्या आज को ये हम लोग रेकमेंड करेंगे किसी मरीज को कि आप जो है ये नाश्ते के साथ साथ ले लें नो सर क्यों क्या रीजन है सर अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी इससे ठीक है और इसके अलावा और दिमाग में क्या आ रहा है खाने को लेके हम लोग इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं फोर से कुछ ऐसे आयरन सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो कि हम लोग खाने के बाद भी ले सकते हैं तो अगर वो फिर हम लोग देंगे क्या नाश्ते के बाद
अच्छा ठीक है, तो एक्चुअली होता ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि आयरन को कभी भी कैल्शियम के साथ नहीं लेना चाहिए, ऐसा ही है? ठीक है, यस सर। तो कैल्शियम और आयरन जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेगा, और कैल्शियम ज्यादातर हमारे पास नाश्ते में होता है। आपके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो नाश्ते में, अंडा हो गया, इवन ब्रेड हो गई और दूध हो गया, तो उसमें सारे डेयरी, इसमें कैल्शियम का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो उसके साथ जो है ना हमें ये आयरन को और कुछ इवन एंटीबायोटिक्स को भी साथ नहीं लेना चाहिए इस वजह से। ठीक है, सही। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा मिस डायग्नोसिस हमने डिस्कस कर, इसका किसी को पता नहीं कि अब जैसे आप लोग को क्लियर हो गया कि कौन सा कॉफ सिरप किसके लिए यूज करते हैं। अगर किसी का ड्राई कॉफ होगी तो आप उसको प्रोटेक्टिव कॉफ वाला नहीं दोगे, तो इट्स आल्सो मिस डायग्नोसिस। ठीक है, और मैं अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि आप मेरे पास एक पेशेंट आया फोर से मैं मेरे क्लिनिक में, ठीक है, तो या वो बार बार मुझसे प्रोटॉन क्लोरफेनेमिन का सिरप लिए जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये हर हफ्ते आ जाता है। तो मुझे बाद में पता चला कि उसने जो है ना उसकी ड्रग अब्यूज कर ली, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स होती है वो ड्राउजीनेस कॉज करती, तो उसने उसका बकायदा ड्रग का नशा या हैबिट फॉर्मिंग उसकी स्टार्ट हो गई और ड्रग अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारे इसके नुकसान होते हैं जो हमने जो है डिस्कस कर लिए। सेल्फ मेडिकेशन आप करते हैं, आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, कुछ कंडीशन को जो है डॉक्टर्स को दिखाना लाजमी होता है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ जो है वो कौन सी हमारे पास है, टाइप्स ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशन कौन कौन सी हैं। तो मुझे कोई बताएगा कि कौन कौन सी होती हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस? एनीवन? हेलो? Supplements mostly NSAIDs. are laxatives we can use as a over-the-counter medication. सर NSAIDs में आ जाती हैं काफी, ibuprofen, naproxen, एंटीहिस्टामिन्स में सर एंटीलर्जिक में वो सिट्राजीन आ जाती है। और Ryzec भी मोस्टली ले रहे होते हैं ओवर द काउंटर ही। जैसे सर वो टॉपिकल्स में हाइड्रोकोर्टिसोन वो आ जाता है। स्ट्रेप्सिल्स, लेक्सोबिरोन सिरप। सर हमारे साथ ऑनलाइन है या डिस्कनेक्ट हुए? मैम स्लाइड्स शो हो रही है, शायद डिस्कनेक्ट हो गए सर। माइक उनका ऑफ हो गया शायद। अभी आ जाएंगे सर। यस सर, आपका माइक ऑफ है। हाँ ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को ना? आई एम ऑडिबल? यस डॉक्टर नेहाल, यू आर ऑडिबल। सही, थैंक यू डॉक्टर यशवा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो आगे हम बात करते हैं। तो आप लोगों ने काफी सारी चीजें बताई, जिसमें हमारे पास एनाल्जेसिक्स आते हैं, एनाल्जेसिक हमारे पास पेन किलर्स आ गए, एनसेड्स आ गए, फीवर रिड्यूसर आ गए। एंटीटसिफ क्या होता है? कफ सर रिप्रेजेंटर। ये क्या मोस्टली ब्रोंकोडायलेटर। एग्जैक्टली, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स आ गए आपके पास, जैसे डिटॉल वगैरह भी हम कह सकते हैं, या आपका जो कुछ फर्स्ट एड की जो क्रीम्स होती हैं, या मर्करी आपने सुना होगा, वो हम यूज करते हैं, दैट इज एंटीसेप्टिक। या ठीक है, इसके एंटीहिस्टामिन्स आ गए, एंटासिड्स हमारे पास एसिडिटी को कंट्रोल करती है, जैसे कि गैविस्कॉन सिरप आ गया। सर्टेन टॉपिकल्स जैसे कि हमारे पास जो है जो कि नॉन स्टेरॉइडल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका एक मिनट, सर्टेन टॉपिक जैसे आपको एनसेड, आपको कुछ ऐसे क्रीम्स भी होती है, जैसे आइडेक्स आ गया या एनसेड बाम आ गया, ठीक है। एंटीपायरेटिक्स हो गए, एंटीडायरल हो गए, एंटीमेटिक हो गए। एंटीमेटिक क्या होता है? वॉमिटिंग सर जो इमोडियम सर मेडिकेशंस होती हैं जो ट्रीट करती हैं नाउजिया एंड वॉमिटिंग को। एग्जैक्टली। तो मुझे ये चीज कंफर्म बताएं कि एंटीमेटिक्स का साइड इफेक्ट नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग होगा कि नहीं होगा? नो सर, वो तो ट्रीट No, करते sir. हैं ना। वेरी गुड। इम्यूनिटी बूस्टर्स आ गए, आपको मल्टीविटामिन्स आ गए, लेक्सेटिव्स हमने सिर्फ बताया, लोजेंजेस आ गए। लोजेंजेस क्या होती है? सर स्ट्रेप्सिल्स वगैरह। एग्जैक्टली, छोटी टैबलेट्स, हार्ड टैबलेट्स होती हैं, जिसको हम लोग जो है वो जो स्ट्रेप्सिल्स वगैरह आगे इसकी हम बात करें, ठीक है। अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें इन दवाओं की, ओवर द काउंटर की, तो आपको जब भी आपके स्टोर में दवाएं आए, जब भी आपके मेडिकल स्टोर में दवाएं आए, तो सबसे पहले आपको उनका
जो है देखना है कि वो सही है कि नहीं है, और उनको सही उनके एलोकेटेड एरिया से ट्रांसफर करना है, ठीक है, रिस्पेक्टिव एरियाज के। ये पोर्टेजा सिरप्स लगे वहाँ सिरप्स वहाँ रखते हैं आप, ठीक है। और इस तरह से आपको जो है उनको ऑर्गेनाइज करना है इन द एक ऑर्डरली मैनर में करना है कि जो लेबल जो है प्रोडक्ट का वो सामने आए। ऐसा ना हो कि उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक्सपायरी सामने आ रही है, उनका प्रोडक्ट का नाम पीछे आ रहा हो, ठीक है। और फर्स्ट एक्सपायर्ड ड्रग आउट शुड बी द बेसिस ऑफ डिस्पेंसिंग, ठीक है। और ये फीफो, और किसी को इसका आइडिया कि फीफो क्या होता है? यस सर, फर्स्ट इन ये फर्स्ट आउट, फर्स्ट FIFO आउट, और फर्स्ट एक्सपायरी और फर्स्ट फर्स्ट आउट, और एक्सपायरी। वेरी गुड एवरीवन। फर्स्ट इन तो और आपको फर्स्ट आउट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सनलाइट से अवॉइड करना है, ठीक है। आपको उसको कंट्रोल जगह पर रखना है, सही है। और स्टोर एक्सपायर गुड्स इन स्टोर, जो भी चीज़ एक्सपायर होगी उसको अलग क्यूरेंटाइन कर दें, ठीक है। और टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया था कि वो सही से जो है वो डिस्कस होना, वो आपको मॉनिटर और रिकॉर्ड करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होती है टेम्परेचर की, हर महीने की इसकी प्रॉपरली इसकी फाइलिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर हम लोग थोड़ा सा इसकी रैशनल की बात करें तो रैशनल यूज ऑफ ओवर द काउंटर ड्रग बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप जो भी ओवर द काउंटर ड्रग दे रहे हो उसका प्रॉपर रैशनल जो है आपको खुद भी मालूम हो और मरीज को भी सही से समझा सके, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको उसकी सही वजह मालूम होगी या सही तरीका इस्तेमाल मालूम होगा, तो आपका ट्रीटमेंट जो है फेलियर नहीं होगा, ट्रीटमेंट आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और फोर से, और इसके अलावा आपके जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी मिनिमाइज होंगे, ठीक है। अगर आप किसी को डिस्पर्सिबल टैबलेट्स देते हो उसको ये नहीं कहोगे कि आप उसको जो है ना खा लें इसको, आप उसको ये कहोगे कि आप डिस्प्रिन की गोली पानी में घोलकर खाएंगे तो इट विल वो इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आएगा, जो उसका पर्पस आपको सही से बताओ, ठीक है। तो यू शुड अंडरस्टैंड द मेडिकेशन, उसका पर्पस क्या है, उसके इंटरेक्शन चेक करो, जैसे कि हमने आयरन कैल्शियम का देखा ओवर द काउंटर में, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मुझे काफी लोगों ने बताया कि खाली पेट आयरन लेना चाहिए, तो इस तरह से आपने ये चीजें, आपको उसका पर्पस और उसका इंटरेक्शन चेक करो, उसकी डोज क्या है, फ्रीक्वेंसी मुझे बताएं, एचएस कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? एचएस बेड टाइम। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन आज में एचएस लिखो तो आप बताओ कि इसका सोते वक्त लो, ठीक है, सोने के बाद नहीं लो, सोने से पहले लो, ठीक है। और इसके अलावा जो है उसमें जो भी इसके इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो करें, ठीक है। और आप पूछ ले, देखें कुछ पेशेंट्स को जो सल्फर से एलर्जी होती है, या अब डॉक्टर लिख देता है, डॉक्टर को नहीं पता, या उसको भी नहीं पता लगा पेशेंट को सल्फर से एलर्जी है, उसने बताया नहीं उस टाइम पे, तो यू शुड एक्चुअली आस्क द पेशेंट कि आपकी जो है कोई सल्फर एलर्जी तो नहीं है या आपको एस्पिरिन एलर्जी तो नहीं है। तो आपको ये जो है इसकी मेडिकल हिस्ट्री खुद भी देखनी चाहिए एक बार, क्योंकि किसी से भी ओवरलुक हो चुकी है। देखिए पेशेंट जब फार्मेसी में आता है ना, तो आप समझो कि लास्ट लाइन होते हो, ठीक है। आपके पास दवा चली गई, पेशेंट ले गया, चला गया, उसने खा ली, तो बस यू आर द लास्ट लाइन, सही, ऑफ डिफेंस, सही है। फार्मासिस्ट जो है लास्ट लाइन डिफेंस। जी सर क्वेश्चन था एक कि जो है ना वो लेमैन आ जाते हैं फार्मेसिस्ट पे, मींस के जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनसे सर वो हिस्ट्री वगैरह लेना इस तरह के आपको सल्फर से एलर्जी है या फिर एस्प्रिन से एलर्जी है, तो सर ये किस तरह हम कर सकते हैं एज अ देखिए फार्मासिस्ट? हमारे पास, हमने तो पहले ये बताया ना कि ओवर द काउंटर सब जितनी भी होती है ना, उसमें यूजली इस तरह का कोई इंग्रेडिएंट होता नहीं कि जो कि कोई एलर्जी कॉज करे। लेकिन आप उनसे फिर भी पूछो कि आपने कभी कोई दवाई खाई, उससे कभी कोई कुछ ऐसा आपकी तबीयत खराब हुई है, या आपको थोड़ा सा जो खुजली हुई है, या आपकी स्किन लाल हो गई हो, किसी भी दवा से आप मुझे प्लीज बता दें। तो थोड़ा सा आपको जो है वो आपको थोड़ा सा उनसे बात करनी, इसलिए फार्मासिस्ट की जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। यस सर, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम, ठीक है। और इसके अलावा जो है सही से पेशेंट को एजुकेट करें, जो भी इस लेवल पर लिखा हुआ है वो सही से उसको बताएं, लेवल रीडिंग आपको खुद भी सही आनी चाहिए, ठीक है। और पंप का यूज है ना, आपको ये देखिए इन्होंने ये एस्मा का पंप बनाया है, तो मैंने एक आप लोगों ने शायद देखा हो, अक्सर जो वीडियोस फनी वीडियोस चल रही होती हैं, तो उसमें वो कह रहे थे कि मैं ये पंप यूज कर रही हूँ लेकिन मेरा एस्मा ठीक नहीं हो रहा। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ये पंप कैसे यूज करती हैं, तो वो इंस्टेड के वो इसको अपने जो है वो जो है वो नोज पे या अपने मुंह में जैसे इस तरह से सक करें, वो परफ्यूम की तरह जो है वो यूज करी थी उस पंप को, तो कैसे उसका जो वो एस्मा ट्रीट होता है। तो पेशेंट को आपको जो है वो सही से जो है वो काउंसिल करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि पंप को जो किस तरह से यूज करना है। आप उसको पहले शेक करो पंप का, उसके कैनिस्टर को, फिर आप जो है गहरी सांस लो, फिर आप जो है उसको एक्सेल इनहेल करो। तो इस तरह से आपको हर चीज जो है पेशेंट को क्लियरली समझाए। आई नो बहुत रश होता है फार्मेसीज में, लेकिन हमारा फिर भी जो है हमारा जो है फर्ज बनता है कि हम सही से पेशेंट को काउंसिल करें, क्योंकि ये हमारी काउंसलिंग जो है वो किसी की जो है ना बीमारी को बहुत अच्छे से ठीक कर सकती है, ठीक है, सही है। तो इसके अलावा हम देखें, जब भी हम जैसे अब मैं देख रहा हूँ कि फलाना डॉक्टर ने ना
समझे कोई भी दवा प्रिस्क्राइब किया और देखे वो पेशेंट का वेट बहुत कम है, आप उससे ये दवा आप लेंगे, आप पहले सबसे पहले जो है पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। सो आप देखें जब भी कोई दवा आ रही है तो पेशेंट देखे वो बाय वेट सही है, जैसे अक्सर पीपीआई भी डॉक्टर्स लिख देते हैं, तो पीपीआई भी बाय वेट जा रहा होता है, कोई अंडर वेट है उसको 40 mg का नहीं देंगे हम लोग पीपीआई, उसको उसकी डोज कम कर देंगे। तो ये भी आप देखेंगे कि वेट कितना है। कोई पेशेंट जो है एल्डरली तो नहीं है कि एल्डरली में भी डोज एडजस्टमेंट्स करनी होती है, या पीरियाडिक पॉपुलेशन को इतनी ज्यादा से किसी को पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने, वो बच्चों में ज्यादा 10 to 15 mg पर केजी से जा रहा होता है और आपने देखा उसको एडल्ट डोज दे दी, तो यू आर द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यू हैव टू बी वेरी मतलब आपको बहुत कीनली चेक करना चाहिए, मतलब पेशेंट को सही से आपको एसेस करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें ये बताएगी कि पेशेंट काउंसलिंग की अगर बात करें तो हमारे पास ये है जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, इसका ये हमारे पास जो है एक बहुत ही इंटरनेशनल बॉडी है जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल को जो है सर्टिफाइड करती है, एक्रेडिट करती है कि ये हॉस्पिटल बहुत कारगर है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, जैसे काहा खान हो गया, शौकत खानम हो गया, शिफा इंटरनेशनल हो गया, ऐसे सारे हॉस्पिटल बहुत कारगर है। ठीक है, तो JCI 4th एडिशन इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स की अगर बात करें, IPSG गोल कहते हैं इसको, तो IPSG गोल का पहला गोल क्या है, कोई बताएगा पढ़ के? आइडेंटिफाई पेशेंट्स करेक्टली। एग्जैक्टली, आपने जो है सलमा की मेडिसिन हफ्जा को दे दी, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझे पूरी जो है जो 5 साल आपने पढ़ा वो सब जाया हो गया। तो आपको पेशेंट को सही से आइडेंटिफाई करना है। अगर 2 अहमद नाम के पेशेंट्स आ रहे हैं तो आप उनका देखिए हर चीज की अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है ना, तो आप उनका MR नंबर देखें या उनका NIC नंबर देख लें, उनकी आप देख लें, अगर डिफरेंशिएट करना हो तो आप कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को सही से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आप किसी को दवाएं समझाए तो देखें वो उसी की दवाएं, किसी और की तो नहीं है। और सेकंड गोल क्या है, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपको जो है ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा बेहतर बनाने हैं। ठीक है, तो वो भी हम आगे देखें तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, सही है, तो ये 2 पॉइंट जो है ना फर्स्ट टू उसमें पैसे टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे फर्स्ट 2 बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पॉइंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हाईलाइट मेडिकेशन होते हैं, जैसे हमने बताया ना कि वॉरफिन हो गए, डिजॉक्सिन हो गए, नैरोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हो गए, तो उसकी भी उसकी सेफ्टी को आपको उसका कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फिनोमेना बहुत अच्छा है कि गुड कम्युनिकेशन, अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो कंफ्यूजन और क्लैरिटी के दरमियान एक ब्रिज होगा। ठीक है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रखनी है, बहुत इफेक्टिव रखनी है कि पेशेंट को सबसे पहले आप पेशेंट के पास मिलेंगे, पेशेंट से मिलेंगे, उसको ये नहीं बोलेंगे ये ले भाई आपकी दवा है, ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम, या आप पेशेंट का नाम ले सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम हमजा, आपकी तबीयत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम XYZ, आपकी तबीयत कैसी है? इस तरह से आप बात करोगे तो थोड़ा सा गुडविल आप डेवलप करोगे मरीज के साथ। उसके बाद आप क्योंकि आपने अच्छे से एकदम बात कर ली ना, वो आपकी बात सुनेगा। ठीक है, कभी भी अगर आपका हेल्थ केयर वर्कर रूड हो तो उससे कोई बात करना नहीं चाहिए, लेकिन आप प्लेजेंटली बात करोगे, अच्छे से बात करोगे तो पेशेंट आपकी सुनेगा और पेशेंट को दवाएं आप सही से समझाओगे, पेशेंट ट्रीट होगा। ठीक है, सही है। फार्मासिस्ट को जो है वो कल्चरली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। सही है, कल्चरल कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि आप फोर्स से कुछ आपको पता है ना, पेशेंट को जैसे वॉरफिन शाम 5 बजे लेता है, ठीक है, अभी रमजान आने वाले हैं, आपने देख लिया, तो आप उससे पूछोगे कि आप क्या रोजे रखोगे? ठीक है, या कुछ ऐसे कल्चर्स होते हैं जिसमें जैसे कि ईस्टर्स में भी रोजे रखे जाते हैं, क्रिश्चियन भी रोजे रखते हैं, या फिर इवन हिंदू कल्चर में भी रोजे रखे जाते हैं। ठीक है, तो आप उससे आपको पता होना चाहिए, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि फलाना बंदा आ रहा है, अभी रमजान आने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें वो किस तरह से दवा लेगा, तो उसको पूरा स्केड्यूल करके दो। ठीक है, या आपको उसके सामने वाले कल्चर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना कि फोर्स से कुछ घर ऐसे होते हैं जैसे कि आई कांटेक्ट जो है ना, कुछ पेशेंट को ना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली खवातीन को। कुछ ऐसे हैं हमारी नेशनैलिटीज, उनको अच्छा नहीं लगता कि आप उनकी आंख में डर के से बात करो, तो इतना अच्छा भी नहीं लगता, जाहिर सी बात है, हमें खुद भी, तो इसका भी आपको ख्याल करना चाहिए। या कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो चाहते हैं कि उनका जो सरभरा है घर का, उसको हर चीज मालूम हो। सही है, या आप जो है किसी भी या उसका आपको सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड मालूम हो कि वो बिजनेसमैन है या कोई ऐसा है जो कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया में रहता है या उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसके घर में ज्यादा लोग हैं, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, एसेस करना चाहिए। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेंगी पेशेंट को दवाएं समझाने में और पेशेंट की को ट्रीट करने में। ठीक है, तो आपको सामने का कल्चर पता होना चाहिए कि उसका अच्छी बात होती है, ये एक प्लस पॉइंट होता है एक्चुअली। सही है,
तो जब भी आप काउंसिल करोगे पेशेंट को, मैं बताया उसके, आप देखो उसकी नीड क्या है, उसको क्यों उसको चाहिए दवा, उसका बैकग्राउंड क्या है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, उसको उसका एजुकेट करो, उसका मेडिकेशन पर्पस और यूज, ठीक है। अगर पेशेंट को ओमिप्राजोल का पर्पस नहीं मालूम होगा या किसी भी एंटासिड का पर्पस नहीं मालूम होगा, तो वो उसको, तो उसका बहुत ट्रीटमेंट फेलियर का चांस होता है, ठीक है। तो पेशेंट को बताओ, अगर देखिए पेशेंट को बताएंगे ना कि ये दवा जो है तेजाबत के लिए दी जा रही है, ठीक है, कि एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं, वो खाली पेट लेगा। अगर आप तो समझाओगे इसको, उसका पर्पस बताओगे, तो इससे बहुत फायदा होगा, ठीक है। उसका वार्निंग बता दो, जैसे हमने डिस्कस किया कि गाड़ी चलाते हुए यूज ना करें कोई भी एंटीहिस्टामिन। आप उसके इंटरेक्शन रिस्क बता दो कि आप अपने डेली प्रोडक्ट के साथ अवॉइड करिएगा, वरना इसका असर नहीं आएगा। उसको किस तरह से इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और जैसे कौन से कुछ पीपीआईज होती हैं, उसको इसलिए मैं ओवर द काउंटर नहीं कहता क्योंकि वो आपका जो है फोर्सेस के राइजिक कह रही है, राइजिक हमारे पास क्या करती है, एक्लोरहाइड्रिया करती है। तो मुझे कोई बताया कि व्हाट इज एक्लोरहाइड्रिया? एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है? एनीवन इन द ग्रुप? HCl की प्रोडक्शन कम होती है। एग्जैक्टली, HCl की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो आप इतना पीपीआई देते हो कि उसकी HCl ही नहीं बन रहा, जो HCl नॉर्मल जो HCl जो खाना जो हजम करने के लिए चाहिए वो भी पेशेंट को अवेलेबल नहीं होता। तो वेरी गुड, ये आंसर किसने दिया मुझे? सर वंश लाल। वंश, वेरी गुड वंस अगेन, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, शाबाश, ठीक है, सही है। तो आप मुझे अब बताएं कि कोई ये पैरासिटामोल की मैक्सिमम डोज क्या है? 1 ग्राम, 2 tablets are 500 grams, 500 4 milligram. 1600 mg आई थिंक। एग्जैक्टली 4 ग्राम जो है हमारे पास इसकी पैरासिटामोल की मैक्सिमम डोज, एसिटामिनोफेन यहाँ मेंशन है, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। सो अच्छा, मेरे पास एक प्रिस्क्रिप्शन आई थी, उसमें लिखा था कि पैनाडोल देनी है उसको 2 गोली दिन में 3 बार, सही है, और निब्रॉल 4 देनी है सुबह शाम, ठीक है। तो ये एक मिनट रुकिएगा, ये मेरा कैलकुलेटर मैं खोल रहा हूँ, किसी को नजर आ रहा है? आए तो मुझे बताइएगा, विजिबल है? नो सर। नहीं आ रहा, अच्छा इसमें कैलकुलेटर, चलो एनीवेज हम लोग खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। कि मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आई, उसमें लिखा था पैनाडोल की जो एक टैबलेट 2 टैबलेट देनी दिन में 3 बार, और निब्रॉल 4 देनी है सुबह शाम। तो पैनाडोल में जो होता है वो कितना होता है, कितने ग्राम? 500 mg। 500 ठीक है, तो ओवरऑल तो पूरा दिन का कितना हो गया? 150 100 6 grams. नहीं, 3 ग्राम हो गया ना? 3 ग्राम 3 ग्राम हो गया। अगर आप पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब करो दिन में 2 गोली दिन में 3 बार, 3 ग्राम हो गया। और डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब करते हैं निब्रॉल 4 जिसमें 650 होता है, तो 650 सुबह 650 रात को, तो डोज एक्सीड करेगी या नहीं करेगी? कितना हो जाएगा? आपको समझ आया मैं क्या पूछ रहा हूँ आप लोगों से? Acetaminophen की सर मैक्सिमम डोज एक्सीड कर जाएगी। एग्जैक्टली किरण, एग्जैक्टली बुशरा, वेरी गुड जॉब। हमारी डोज एक्सीड कर जाएगी तो हम निब्रॉल 4 की फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, और जो है तो हमें ये सब चीजें बहुत दिमाग में रखनी चाहिए कि इसकी मैक्सिमम डोजेस क्या है, ठीक है। और आपको 4 से किसी ने कैलपोल भी लिख दी प्रिस्क्रिप्शन पे और पैनाडोल भी लिख दी, तो वी शुड अवॉइड दी डुप्लीकेशन, हमें जो है वो डुप्लीकेशन अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, सही है। आप उससे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन रखो, ठीक है, आप ओपन कम्युनिकेशन रखो, आपको बुलाओ कि आपको कुछ चीज समझना है तो आप वापस आकर हमसे पूछ सकते हैं, आप उसको इंकरेज करो आपसे सवालात करें। और अगर 4 से पेशेंट बहुत दूर रहता है तो आप उसको अपनी फार्मेसी का अपना नंबर दे दो, ताकि या कोई ऐसी ड्रग इन्फॉर्मेशन का नंबर देते हो ताकि वो आपसे फॉलोअप पर नहीं आ सकता, तो वहां से कोई इमरजेंसी या कुछ चीज पूछना हो तो आपसे पूछ सको, ठीक है। तो इंडियन आपको ये करना होता है काउंसलिंग में, सही है। आप पेशेंट को जो है ना कुछ ऐसे विजुअल एड भी दे सकते हो या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बता सकते हो कि जो उसका जो गैप है ना वो फिलअप, जो नॉलेज का जो गैप है ना उसको ये चीजें नहीं मालूम फिलअप हो जाए, ठीक है। तो 4 से कुछ दवाएं होती है जो कि हम लोग इनहेलर्स के जरिए दे रहे होते हैं, कुछ कैप्सूल होती है, तो पेशेंट कैप्सूल खाए नहीं बल्कि उसमें इनहेलर में डाल के जो उसका यूज करे, तो उसमें आप ये लगा सकते हैं, नॉट टू बी टेकन बाय, ये आपको मुंह से नहीं खानी है बल्कि आपको इस इनहेलर में डाल के यूज करनी है, ठीक है। इसको रेवलाइजर भी कहते हैं, ठीक है, इस तरह से, सही है। और उसको किस तरह से असेंबल करना है, अगर कोई डिवाइस है तो उसको किस तरह से असेंबल करना है, उसका आप लीफलेट दे सकते हो, उसका इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप दवाओं को खोल सकते हो कि ये देखिए इस कलर 4 से वार्फिन 1 mg की पिंक कलर की आती है या पीच कलर की आती है, या कोई भी दवा है
कोई भी ओवर द काउंटर वो ये इतनी mg की, जैसे कैस्टीन है 10 mg की छोटी टैबलेट होगी, 20 mg वाली बड़ी टैबलेट होगी, बस्टीन की मैं बात करूँ एंटी एलर्जी, तो आपको उसको बताना चाहिए। अच्छा मुझे कोई बता के व्हाट इज स्कोरिंग, स्कोरिंग क्या होता है टैबलेट के ऊपर, एनीवन, व्हाट इज स्कोरिंग? जी जो मार्क बना हुआ होता है, टैबलेट दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एग्जैक्टली ये आंसर किसने दिया? इरज। इरज, वेरी गुड जॉब। आप कहाँ से इरज, कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। वेरी गुड Final year इरज, student। आपको जो है तालियां, आपके लिए आप बहुत अच्छा आंसर दिया। तो स्कोरिंग बेसिकली आपका इसमें एक समझे कि एक स्लिट होता है जिसको आप ब्रेक कर सकते हो, किसी भी दवा को 2 हिस्से में ब्रेक कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादातर आपके उन दवा पर फिल्म कोटिंग नहीं होती है, ठीक है, सही है। तो नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पे। तो आपको आखिर में ये करना है कि आपने जब पेशेंट को सारा समझा दिया ना, तो आप उससे पूछो भी आपको क्या समझ आई, ठीक है। और आपको ना ये भी देखना है कि पेशेंट की को कितना, उसको कितना ऑलरेडी पता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं वो आपके सामने कभी खुद भी एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कुछ पेशेंट मेरे ऐसे होते हैं जो खुद भी डॉक्टर होते हैं, तो आई नो कि फलाना बंदा जो है सामने डॉक्टर, मेरा मरीज है वो डॉक्टर है इटसेल्फ, या वो डेंटिस्ट है, वो मेरे पास आया तो उसको इतनी नॉलेज होगी। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बताया ना कि जो कि ले मैन, उसको बिल्कुल नहीं मालूम, तो हमें पेशेंट की ना नॉलेज को थोड़ा वेरीफाई करना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है दवाओं को लेकर, ताकि उसी हिसाब से हम उनको समझा सके, ठीक है। तो और वो आप ये ऑब्जर्व करो कि पेशेंट को कितना समझ आ रहा है, वो कितना जो है वो उसको, उसका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स अपनी दवाओं के हवाले से, ठीक है। और वो उसको बताओ कि आप उसको फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है कि मरीज की क्या सोच है, वो कितना उसको पिक कर पा रहा है, ठीक है, ताकि आपको उतने एफर्ट्स पे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब ये इसमें लिखा हुआ है कि अब हेल्थ लिटरेसी क्या होती है, जो हमने बताया है, ये सीडीसी गवर्नमेंट ये कहती है कि जिनकी हेल्थ लिटरेसी कम है, जिसको अपने हेल्थ के बारे में बहुत कम मालूम है, जो थोड़े बैकवर्ड एरियाज हैं, या इवन जो पढ़े लिखे लोग भी, तो उनको अपनी हेल्थ का इतना लिटरेसी नहीं होती, कि उनको नहीं मालूम होता कि शुगर कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, या हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल क्या होता है, ठीक है, लोगों को नहीं मालूम होता। तो इसमें क्या होता है कि जो जिन मरीजों की हेल्थ लिटरेसी बहुत कम होती है, वो क्या होगा कि वो उनके इमरजेंसी रूम के विजिट्स बढ़ेंगे, बार बार इमरजेंसी में जाएंगे, हॉस्पिटल स्टे बढ़ेगा, ट्रीटमेंट प्लान जो होगा वो सही से फॉलो नहीं करेंगे, वो नहीं लेंगे, वो सुबह शाम दवा नहीं लेंगे, वो सिर्फ सुबह ले लेंगे, हालांकि फीवर की गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए, जैसे भी डॉक्टर ने वो सर फॉलो नहीं करेंगे, आपका मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट समझ आता है सबको, व्हाट इज मोर्टेलिटी रेट? वेरी गुड, ठीक है। तो लैक ऑफ सफिशिएंट नॉलेज क्या होती है कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है, ठीक है, और आपकी नॉन एडहेरेंस जो होती है वो टुवर्ड्स दी फार्माकोथेरेप्यूटिक रेजिमेन हो सकती है। इसमें कहने का मतलब है कि अगर आपको जो है इतनी सफिशिएंट नॉलेज नहीं है मरीज को, ठीक है, तो वो दवाओं को सही से टाइम पर नहीं लेगा, नॉन एडहेरेंस करेगा, एडहेर नहीं होगा टुवर्ड्स द प्रिस्क्रिप्शन। समझ आया आपको? ठीक है। तो पुअर मेडिकेशन एडहेरेंस हुई तो पुअर हेल्थ कम आउटकम्स आए, फिर आपकी जो है आपका उसमें फिर डॉक्टर की फीस लग रही है, फिर हेल्थ के कॉस्ट बढ़ रही है, फिर पेशेंट पर जो है ना वो बहुत ज्यादा उसका इकोनॉमिकली बहुत जो है वो नुकसान हो रहा है। सो इन दी एंड ऑफ द डे फार्मासिस्ट जो होता है एक सुपर हीरो होता है या सुपर हीरोइन होती है, ठीक है, जो कि इस नॉलेज को, इस लैक ऑफ सफिशिएंट नॉलेज को फिल कर सकती है, ठीक है, ताकि ये जो प्रोसेस है ये कट डाउन हो जाए, ठीक है। तो हम लोग किसी भी मरीज की जो है लिटरेसी को जो है हेल्थ लिटरेसी को कैसे जो है वो बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे कि बी अ गुड कम्युनिकेटर। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है बहुत अच्छा रखो, सही से कम्युनिकेट करो, और टीच बैक मैकेनिज्म यूज करो। आपने समझाया है, आप आपसे पूछा, अब आप मुझे बताएं आपको दवा कैसे खानी है, ठीक है, वो आपको वापसी बताएगा, जब वापसी बताएगा उसको वो चीज याद हो जाएगी, वो उस पर उसको उस तरह से एडहेयर करेगा, और बहुत ही सादी लैंग्वेज यूज करें। अब ये नहीं बोलेगा सर आपको ये एंटीपायरेटिक है, आप ये कभी नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे सर बुखार उतारने के लिए जो है वो दवा है, ठीक है, या जो है वो आपका पेन किलर है, सही है, या उसकी नेटिव लैंग्वेज में जो है आप उससे बात करोगे, ठीक है, सही है। अगर आपको ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि फार्मासिस्ट को जो है ना आई थिंक मोर देन उर्दू और इंग्लिश दूसरी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, सिंधी पश्तो, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको उर्दू नहीं आती है। हमारा हेल्थ केयर ऐसा है, ठीक है, एक्चुअल जो हेल्थ केयर, तो हमें अगर किसी को आती है दूसरी लैंग्वेज तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो आप उसको उनकी लैंग्वेज में समझा सकते हो, लेकिन आपको कभी भी कोई ऐसे भारी भरकम जैसे हाइपरटेंशन नहीं कहना, आपको ब्लड प्रेशर कहना, ठीक है।
सो मेडिकेशन एडहेरेंस क्या होती है कि मींस कि आप लोग बताएं क्या होती है मेडिकेशन एडहेरेंस अब? सर मेडिसिन जो है ना वो उसकी डोज उस तरह लेना और टाइम पे लेना, इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक लेना। एग्जैक्टली ठीक है, और एग्जैक्टली आपको राइट अमाउंट में लेनी है और राइट जो है आपको अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन लेनी है। एग्जैक्टली फोर्स से किसी डॉक्टर ने कहा कि आपको ये 3 दिन खाना है पेन किलर, तो 3 दिन से ज्यादा एक्सीड ना करें, ठीक है। और टॉप 5 कॉजेज क्या होती है मेडिकेशन एडहेरेंस की? मिसअंडरस्टैंडिंग। पेशेंट ने कहा कि मुझे सुबह शाम आपने कहा था लेकिन मैंने एक बार ली है, मुझे लगा एक बार लेनी है, ठीक है। तो ये या भूल जाना, तो अब उसको बोला भैया मोबाइल में अलार्म लगाओ, कैलेंडर लगाओ कि आपको शाम को दवा लेनी है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिकेशन, मेडिकेशन जो भी आप समझा रहे हो उसको इतना कॉम्प्लेक्स ना करो, आसान लफ्जों में। और ये लोग डर जाते हैं भाई ये खून पतला करने की दवा है या ये ओवर द काउंटर ड्रग जो नींद जिससे आएगी तो मैं नहीं लूंगी, ठीक है। लैक ऑफ सिम्टम्स, अब मैंने जो है वो मेरे जो है सिम्टम्स कम हो गए तो मैं दवा बंद करी, स्पेशली चीज एंटीबायोटिक्स में होती है, ठीक है। सो लास्ट में मैं कहूँगा कि जो भी सवालात पूछते हैं वो बड़े अक्लमंद लोग होते हैं, तो कौन कौन अक्लमंद है यहाँ पे जो मुझसे सवालात करना चाहेगा इन द एंड, बिकॉज आई एम ऑल डन। किसी के सवालात है? मारिया कुछ कहना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया। मेरा एक क्वेश्चन है वो ये कि कम्युनिटी फार्मेसी पे इंटर्नशिप करते टाइम मोस्टली इस तरह से होता है कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक ब्रांड नेम अवेलेबल नहीं होता, तो हम अगर किसी इनकमिंग पेशेंट को या उसके रिलेटिव को अगर हम ये कहते हैं कि सर सॉल्ट सेम है आप ये ले लें, सो उस चीज पे विलिंग नहीं होते, उनको वही स्पेसिफिकली वही ब्रांड उसी रंग का डब्बा उसी साइज का डब्बा चाहिए, तो हम इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते? आप उनको यही, इसमें आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स ये आपके बहुत अच्छे होने चाहिए कि आप ऐसा कम्युनिकेट करो कि सर ये दवा आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी या आपको दवा अवेलेबल नहीं है और आप बीमार भी हैं, ठीक है, तो आप फिलहाल के लिए ये यूज कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको काउंसिल कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, बिकॉज यू हैव दी, समझे आपके पास लाठी है, आपके पास चार्ज है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हम जॉब कर रहे हैं किसी फार्मेसी पे और इसी तरह के एक ब्रांड जो है ना उसकी प्राइस फॉर एग्जांपल लेट्स से कह लें कि 100 है और सेम सॉल्ट के साथ ही एक मेडिसिन है ब्रांड और उसकी प्राइस जो है ना वो 50 है। तो अगर सर इसी तरह जो है ना वो हम पेशेंट्स को जो है ना वो काउंसल करके और कॉस्ट इफेक्टिवली हम उनको देते हैं मेडिकेशंस, तो सर अगर हमारे जो सीनियर्स हैं या फिर फार्मेसी के ऑनर्स हैं वो हमें अगर इस पे कहें कि नहीं आपने जो है ना वो इनको महंगा ब्रांड ही देना है या हमारी सेल्स कम हो रही हैं, तो इसके लिए सर हम उनको कैसे टैकल कर सकते हैं? अब देखिए इसमें टैकल तो नहीं होता है, आपकी कुछ अपनी फार्मेसी की, इसमें मैं इतना कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हमें तो खैर कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कोई पेशेंट जो नॉन अफोर्डिंग है वो इतना महंगा ब्रांड नहीं ले पाता, आप पर राइट होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप उसको स्विच कर सकते हो किसी सस्ते ब्रांड, ठीक है। एक ये चीज हो गई, सही है। और दूसरा ये कि कुछ पॉलिसीज आपकी हॉस्पिटल की होती है उसको आपको मोरलेस फॉलो करनी पड़ती है। डॉक्टर यशवा इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे जो हसान ने जो क्वेश्चन पूछा है? चले कोई बात नहीं, आई थिंक हसान आपको थोड़ा क्लियर हो गया। प्लीज रिपीट दैट क्वेश्चन व्हाटएवर यू हैव आस्क्ड, मैं जरूर कोई अपना इनपुट देना चाहूंगी। आई वाज थैंक यू डॉक्टर यशवा। सो आई डिड नॉट लिसन। यस मैम, आई एम आस्किंग अबाउट के अगर जो है ना वो पेशेंट आता है तो प्रिस्क्रिप्शन पे या फिर वैसे ही वो ओवर द काउंटर भी कोई इस तरह का ब्रांड है जो उसकी प्राइस 100 है और कोई ऐसा ब्रांड है सेम सॉल्ट है जेनेरिक नेम है और उसकी प्राइस जो है ना वो 50 है, तो हम पेशेंट को काउंसल करते हैं कि आप जो है ना ये वाला ब्रांड ले लें, ये कॉस्ट इफेक्टिव है आपके लिए। इस तरह हम जो है ना वो सेल कर रहे होते हैं और अगर ये सेल करते हुए जो है ना वो फार्मेसी का ऑनर या फिर फार्मेसी का जो हमारा सीनियर हो वो हमसे ये कहे कि इस ऐसी प्रैक्टिस से जो है ना वो हमारी सेल कम हो रही है तो आप ऐसे ना करो, तो इस सारी कंडीशन में हम कैसे टैकल कर सकती हैं, फिर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसी की बात मानेंगे जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो यही चीज आप देखेंगे जो आपका जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे जिसकी सुपरविजन में आप काम कर रहे हैं वो आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो आपको तो पहले वही काम करना है, ठीक है। सेकंड आपने ये देखना है कि हाँ जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चांसेस नहीं है
कोई वो मेडिकेशन देने के जो कि एक्सपेंसिव है और पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर आप उसको वही प्रेफर करें जो कि कम प्राइस पे है मेडिकेशन। जो चॉइस हमारे पास अवेलेबल है हम उसको फिर वही देंगे, और जहाँ पे हमारा ऑप्शन बन सकता है कि हम सेल्स अपनी कर सकते हैं हाई प्राइस मेडिकेशंस की, तो हम वहाँ पे हाई प्राइस मेडिकेशंस देंगे। क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना कि हम हर पेशेंट को जो है वो चीप प्राइस मेडिकेशन दें। वी कैन और वी हैव टू मेड आवर सेल एज वेल। चाहे आप अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात सोचते हैं और अगर आपका खुद का ये काम है, तो फिर आपको तब भी ये चीज देखनी पड़ेगी। ये थैंक यू डॉक्टर आंसर यशवा, सर। आपने बहुत अच्छा आई डोंट नो। बहुत अच्छा जी। यस मैम, कि डिपेंड करेगा कि हम पेशेंट की जो है ना वो बैकग्राउंड जो है वो उसकी कितना उसका स्ट्रॉन्ग है, उस लिहाज से देख लेंगे। ठीक है, ईशा सईद कुछ कहना चाहती हैं आप? यस सर, मेरा क्वेश्चन था कि हमारी जो डोज होती है कि 2 टाइम्स अ डे या 3 टाइम्स अ डे हमने एक मेडिसिन देनी है पेशेंट को, हम उसको कंसल्ट कर देते कि आपने ऐसे लेनी है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट टाइम प्लान फॉलो नहीं कर पाता, लाइक एग्जैक्ट 12 आवर्स के बाद वो अपनी डोज नहीं ले रहा या एग्जैक्ट 8 आवर्स के बाद नहीं ले रहा, तो उसमें फिर एडहेरेंस का हम कैसे रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए ईशा, यू आर द टॉर्च बेयरर, ठीक है, तो आप पूरा जो है उसको सही से काउंसिल करेंगे। मैंने बताना कि बी आर गुड कम्युनिकेटर, और उससे पूछो, उसको बताओ कि आप जो है ना, अगर आप सुबह शाम लेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे, अगर आप सुबह शाम नहीं लेंगे तो आप वापसी यहाँ बार बार आते रहेंगे। तो इस तरह से आपको जो है ना उनको इतना रिगरसली काउंसिल करना पड़ता है कभी किसी मरीज को, तब जाके वो फिर समझता है। कुछ हमारे पास तकरीबन 70% ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपनी दवाई टाइम पर नहीं लेते। तो यू आर द जो है टॉर्च बेयरर और यू आर द सुपर हीरो। तो इस तरह से आपको करना है कि आपको उसको आमादा करना है इस चीज पे। तो ये आपका अपना एक स्किल है फार्मासिस्ट का स्किल ही यही होता है कि वो पेशेंट को इस तरह से लेकर चले, इस तरह से जैसे हमने डिस्कस किया कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, अच्छे से बातचीत करें मरीज के साथ ताकि वो आपकी बात सुने और समझें। आप उनको बताएं कि जो है कि आप अगर दवा नहीं लेंगे इस तरह से तो फिर आप बार बार आएंगे और फिर यूज आई एम रियली तो इस तरह सॉरी, से करना है। मैं सही डिस्कनेक्ट ईशा? हो गई थी, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? ओके सर, ओके। नहीं डॉक्टर यशवा, ईशा ने सवाल पूछा था, मैंने इसको बता दिया। किरण आप कुछ कहना चाहते हैं? ईशा ऑल क्लियर, समझ आया आपको? जी सर, मेरा Yes, क्वेश्चन sir. है कि ओटीसी लाइक एस्पिरिन वो कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट वुमन में? नहीं, एस्पिरिन हम देते हैं पेशेंट्स को। ये आपके जाती है उसमें ना, इनिशियल उसमें जारी होती है, दे सकते हैं, इवन वार्फिन भी दे सकते हैं आपकी प्रेगनेंसी। सर मेरा एक क्वेश्चन था वो कि वो तो यस बिस्मा कैरी ऑन। पूछिए। You can go ahead, Hassan. थैंक यू सर। मैंने एक क्वेश्चन ये पूछना था कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं अक्सर जो है ना वो हम बाय करके या इस तरह कहते हैं कि आप बाय करके जो है ना वो घर में भी रख लें, जिसमें जो सर वो कार्डियक अरेस्ट के लिए या फिर एंजाइना के लिए जो होती है, जो एंजीसाइड्स वगैरह होती हैं, तो वो रख सर सकते हैं, वो रख सकते हैं सर लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं? डेफिनेटली आपके घर में डिसिप्लिन या इस तरह की मेडिकेशन होनी चाहिए, रख सकते हैं। इवन आप अगर आप हेल्थ केयर वर्कर्स हो तो आप साथ लेकर भी रख सकते हैं। आपको रोड पर किसी को अरेस्ट आ गया हो तो आप उसको डिसिप्लिन दे सकते हो, तो आप बहुत आसानी कर सकते हैं लोगों के लिए, तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अच्छा मुबशिर का कुछ सवाल है और ये क्यों किया हुआ आपने? यस सर, और लाइबा जी पूछिए। अच्छा सर, बहुत सारी प्रेस्क्रिप्शन होती हैं जिनके अंदर ये ओटीसी ड्रग प्रेस्क्राइब की गई होती हैं डॉक्टर की तरफ से या फिजिशियन की तरफ से, अगर तो उसमें ओवरडोज या डॉक्टर ने गलती से फिजिशियन ने कोई ओवरडोज लिख दी है ओटीसी ड्रग की, या मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी गलत कर दी है, तो हमने फिजिशियन से कंसर्न करना है पहले या फिर हम खुद भी चेंज कर सकते हैं उसको? ओवर द काउंटर तो हम लोग खुद चेंज कर सकते हैं, लेकिन वी शुड कम्युनिकेट द प्रिस्क्राइबर ना, हम बार बार हमारे लिए भी इजी हो जाएगा, आप एक बार बता दो कि प्रिस्क्राइबर को। अब तो बहुत अच्छा हो गया है, आई थिंक के बहुत अच्छा हो गया है। मतलब आप ये देखें कि अब डॉक्टर्स और फिजिशियंस जब हमारी बात सुनते हैं तो अब वैसा वाला दौर नहीं रहा, काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है फार्मासिस्ट और फिजिशियन रिलेशनशिप में। तो आप उनको कम्युनिकेट करें, क्योंकि आप उनको नहीं बताएंगे वो बार बार करते रहेंगे। ठीक, अभी तो आपने देख लिया, कभी आप नहीं हुए, ठीक है, तो उनको बताना इस हिसाब से बहुत जरूरी है कि उनकी नॉलेज में हो।
ठीक है। अब इसमें आप कुछ कहना चाह रही थी? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी आस्क। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने डेली प्रैक्टिस में ये देखा है कि जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना डॉक्टर, तो उसमें सब मेडिकेशंस तो होती हैं जो उनकी डिजीज़ से रिलेटेड होती हैं, लेकिन कुछ वो एक्स्ट्रा मेडिकेशन भी लिख देते हैं। तो लेकिन अब जो पेशेंट है उसके माइंड में यही होता है कि ये तो एक्स्ट्रा है, ये नहीं लेनी चाहिए। तो वो जब फ़िल करवाता है तो वो खुद ही कह देता है कि ये मेडिसिन आप दे दें, ये वाली ना दें। तो उसको फिर हम किस तरह से इस बात पे आमादा करें, क्योंकि कि हो सकता है वो मेडिसिन इम्पोर्टेंट हो, कुछ रिजीम होती हैं, लेकिन हाँ आप ये हाँ सॉरी लाइबा की बात में कट कर दी, आप कंप्लीट कर लें। जी सर, तो उसको इस माइंडसेट से कैसे निकालें कि ये सारी मेडिसिन इम्पोर्टेंट है, ये रिजीम है, इसको फॉलो करेंगी तो प्रॉपर जो है वो आपका इलाज हो सकेगा, तो ठीक है। इस तरह से। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से मेक श्योर करें कि लाइबा क्या प्रिस्क्रिप्शन में गो थ्रू करें कि इसमें वाकई इसकी नीड है भी कि नहीं है। आप अपना क्लिनिकल इंसाइट इतना जबरदस्त रखें कि आपको इतना खबर हो कि ये दवा जो जारी फोर्स से किसी को पीपीआई भी लेती है और एंटीहिस्टामिन 2 ब्लॉकर होते हैं ना, फेमोटिडीन हो गई, वो भी साथ प्रिस्क्राइब कर दी, तो डबल ये जा रही है, इरेशनल जा रही है, तो आपको एक चीज बंद कर सकते हैं। लेकिन ये कि आप ये मेक श्योर करें कि वाकई इसकी नीड है कि नहीं है। फिर आपको वंस अगेन पेशेंट को जो है, एज आई टोल्ड अर्लियर, कि आप टॉर्च बेरर हो, आपको पेशेंट को काउंसिल करना है और समझाना है। अगर आप 2-3 बार समझा रहे हो वो नहीं समझ रहा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। पेशेंट जो होता है फिर उसको, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं बिल्कुल भी नहीं समझते, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं, आप गुड कम्युनिकेटर हो, तो देन यू कैन एक्चुअली जो है आप उसको मनवा सकते हो उस बात को। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है एडीआर रिपोर्टिंग के लिए, तो फिर उसके लिए फिर हम एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट व्हाट वी शुड डू इन दैट केस? आपको डेफिनेटली जो है, देखिए अगर रिपोर्टिंग के लिए आ रहा है तो वी हैव ड्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें ड्रैप का जो है रिपोर्टिंग फॉर्म है एडीआरस का, तो आप उसमें लाजमी रिपोर्ट करो, और ड्रैप की एप्लीकेशन भी है। तो या आप इसको रिपोर्ट करो, उसको बताओ, उसमें पूरा एक फॉर्म आपको जो है वो मिलेगा, उसमें कंपनी का नाम और क्या डोज थी, किस टाइम हुआ, और क्या, उसमें पूरा फॉर्म फिल करके आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। तो बहुत अच्छा आपने बिस्मा ये डाला, ये जरूरी भी है। जी, we should directly report to DRAP website. he can. Even I have reported many ADRs, जो है वो मैंने ADRs रिपोर्ट किए। या अगर आपका वो उसके साथ जो कंपनी अगर आपके पास आती है आपके स्टोर में या आपके सप्लाई चेन में, आप उनको भी अपडेट कर सकते हो, कंपनी से भी डायरेक्ट बात करें और आप रिपोर्ट भी करो। सही, इसमें रिपोर्टिंग इज गुड एक्चुअली। ऑलराइट। और सर दूसरा ये कि हम बीइंग अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है उसको भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, बिकॉज एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट आवर मेजर कंसर्न इज टू ट्रीट आवर पेशेंट्स विद द बेस्ट आउटकम ना। सो फिर अगर हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सो मे बी के इन दैट सेंस हमारे जो पेशेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लाइक कि अगर मैं कॉस्ट, वही बात अभी किसी हसन ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन की है, बट ये है कि अगर हमें कहा जाता है कि आप यही फिलहाल मेडिकेशन जो है वो दें, तो सर ये चीज़ भी तो थोड़ी वो हो जाती है ना। हाँ डेफिनेटली बिस्मा, आप ये ऐसा है, लेकिन ये कि हमारी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती है ना। हमें तो ऐसे होता है, हमें जॉब भी करनी है और हमें अपनी कंपनी को भी देखना है। तो डॉक्टर यशफा ने भी यही बात कही थी कि वी हैव टू सी आवर पॉलिसी। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब कि हार्ड एंड फास्ट वही हो, इसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं। जी जी, वंशलाल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, जैसे कि आपने कहा कि एडीआर रिपोर्टिंग डायरेक्टली ड्रैप पे करनी चाहिए, तो वो एक लाइसेंस फार्मासिस्ट कर सकता है या कोई भी कर सकता है, क्योंकि एडीआर रिपोर्टिंग अगर किसी ने ये बहुत अच्छा है आपने कहा। आई थिंक डॉक्टर यशफा फार्माकोविजिलेंस पे, जी सॉरी वंश पूरे कहिए बात। मैंने कहा कि वो जो एडीआर आया है वो तो अगर सर्वे तो करनी चाहिए ना, कि वो ज्यादातर बंदों में हो रहा है, सिर्फ एक ही बंदे को हुआ है, तो वो किसी और मेडिकेशन की वजह से हुआ है या उसकी अपनी एडीआर ड्रग की। हाँ, ये आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा बिफोर रिपोर्टिंग द एडीआर। आप जो है वही आप देखोगे सारा कि उसको जो है ये पहले कभी हुआ है कि नहीं हुआ, या उसको कोई डिजीज तो नहीं थी। ये आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके और आपको जो है वो रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई नर्स भी कर सकती है। एनीवन कैन रिपोर्ट थ्रू दी ड्रैप वेबसाइट। ठीक है,
So it's all the whole pharmacovigilance ये होता है, तो उसमें पेशेंट की पूरी आपको असेसमेंट करके और इन्वेस्टिगेशन करके फिर आपको रिपोर्ट करना चाहिए. I think Dr. Yashva, Yes, over to you. You all people will have this webinar as well on pharmacovigilance, inshallah, in this summer internship program. तो उसमें आपको पूरा criteria और सब चीजें जो है वो आपको डिस्कस की जाएंगी इंशाल्लाह. And thank you so much, Dr. Nihal, for such an insightful, engaging, and impactful session. And your expertise has truly enriched our understanding for the pharmacist's role in OTC medications. And thank you very much, sir. To all the participants as well, thank you for your encouragement, your enthusiasm, your thoughtful engagement. And let's continue learning, growing, and transforming pharmacy practice together. We look forward to hosting more enlightening sessions in the future, inshallah. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Yashva, and everyone. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.